So, hello dear student and welcome to the class. In this class, basically we are going to see AIT 2 video solution of chemistry paper, right? So, this is going to be a very interesting session for all of you in which you learn lots of important tips and tricks. ठीक है, जो भी mistakes हम लोगों ने किए होंगे कुछ questions में, उन सब का solutions हम लोग इसमें cover करने वाले हैं. So, let's start with the class. बड़ा important class है. So the first question था हम लोगों का, that is among the halogen from top to bottom the van der Waals forces क्या होता है? So it's a very simple question, right? So if we talk about halogen or nitrogen family or oxygen family or any other group, if we move from top to bottom, their molecular mass increases, right? So if the molecular mass increases, van der Waals forces also increases because the van der Waals force is directly proportional to the atomic size. So we can say that is among the halogen from top to bottom interval forces increases. Now the next question is it's from equilibrium. The concentration of OH of an aqueous solution is given. You have to calculate the pH of the solution, right? So we know what is the formula of pH. How will you find pH, beta? So we'll find pH. So pH is nothing but is equal to minus of log of hydronium ion, right? Minus log of hydronium ion. Now here minus is minus. So you just need to calculate the value of this hydronium ion. Okay? You need to calculate this value of it. So how will you calculate this value? So we know very important term, that is H plus concentration and OH negative concentration. Their product is equal to 10 k raised to the power minus 14. This we'll know. ये formula हम सबको पता है, right? So from here you can easily calculate the concentration of H plus. How will you calculate, beta? 10 raised to the power minus 14, and this is divided by concentration of OH, which is equal to 10 raised to the power minus 5. So on solving you'll get the value, that is 10 raised to the power minus 9. Just put the value here. So this is minus log NH plus is nothing but 10 की power minus 9. So it comes out to be minus of minus 9 log 10. Log 10 we all know 1. So value comes out to be 9. So the correct answer is 9. Okay? So this is how you can easily calculate. Now, move to the next question. That is the correct order of the electronegativity of NOF, NP. So they are asking the electronegativity of this four element, right? Now, if we talk about nitrogen, nitrogen belong to 15th group, oxygen belong to 16th group, and fluorine belong to 17th group, where phosphorus belong to 15th group as well. Right. So we all know that when you move from left to right in the periodic table, electronegativity value also increases. So we can say that out of these, fluorine is highly electronegative in nature. Then comes oxygen, then nitrogen, and after nitrogen, we have phosphorus. So minimum value for phosphorus and maximum value for fluorine. So order is like this, right? Fluorine, then oxygen, then nitrogen, and then phosphorus. So option B is absolutely correct. Now, the most non-metallic element in the group 15. So they are asking most non-metallic element in the group 15 element. So down the group, metallic character increases, right? If we move from top to bottom, metallic character increases due to increase in the due to decrease in the ionization energy, because if we move from top to bottom, size increases, and due to this ionization energy decreases. So that's the most non-metallic element in the group 15 is nothing but nitrogen, right? So nitrogen is the most non-metallic element because they are the non-metal in nature. Okay. Chalo. So this is a correct option. That is A. Now move to the next question. Which of the following sets of quantum number are associated with the highest energy? So they are asking, okay, out of this four, which of the following sets of quantum number are associated with the highest energy? Now for the energy purpose, we use one rule, that is N plus L rule, right? So this N plus L rule is used to find the energy of the sets in the terms of quantum number, right? So now for in the first case we have 3 plus 2, that is 5, right? In second case we have 3 plus 1, that is 4. In fourth case 3 plus 0, that is 3, and 4 plus 0, that is 4. So the maximum value is for 5. So option A is the correct answer, right? So option A is the correct answer, in which n is equal to 3, n is equal to 2. It is a 3D, and 3D level are the highest energy level. ठीक है, कौन सा level हुआ? That is 3D. Okay, so option E is absolutely correct. Now, the designation of an orbital with n is equal to 4 and l is equal to 2. n is equal to 4 means 4, L2. L is equal to 0 matlab S, 1 matlab P,
2 मतलब D, right? So here we have N4L2, so that is 4D. So option A is absolutely correct. That's a very simple question from the quantum numbers, right? So these two questions are from the quantum number structure of atom, and these are very simple to solve. Chalo, move to the next question 59. That is the total number of valence electron in NH4 plus is. So you have to calculate the total number of valence electron in the NH4 plus. So we have N, right? So in N we have 2 comma 5, 5 valence electron, and in H we have 1 into 4, that is 4 valence electron. So total valence electrons comes out to be beta, that is 5 plus 4, that is 9. But here we have a plus 1 charge, so just subtract one value, it comes out to be 8. So the correct answer is option A. Chalo. Now, question number 60. In case of the following question, a statement of assertion is followed by the statement of reason. You have to identify, right? So, assertion is given that the relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to the mole fraction of the solute. This is very true. This is the colligative properties, right? We know from the relative lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. So, this statement is absolutely correct. Now, reason. Raoult's law is applicable for all non-volatile liquids. So, Raoult's law is applicable for the all non-volatile liquid. So is this correct or not, right? So just try to observe this two assertion and reason. So assertion is absolutely correct. ठीक है, assertion में तो कोई problem नहीं है, assertion बिल्कुल क्या है, correct है, because relative lowering in vapor pressure इसके equal ही होता है, mole fraction के equal, right? Now अगर मैं बात करूं रीजन की, so Raoult law is applicable for all non-volatile electrolytes. So this is not true, right? रॉल्ट लॉ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं. सो ऑप्शन सी जो है, दिस वन, राइट, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. असर्शन तो सही है बट जो रीजन है वो फॉल्स हो, कि रॉल्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे. नाउ 61 क्वेश्चन देखते हैं एक बार फटाफट. क्या है कि इन द डायरेक्शन क्वेश्चन स्टेटमेंट असर्शन इज फॉलोड बाय सेम है असर्शन रीजन. नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर CO+3H2 gives us CH1 plus H2O, if the volume is decreased the reaction proceed in the forward direction. ठीक है, रीजन बोला है फॉर द methanation reaction above decrease in volume cause QC is greater than KC. ठीक है, तो भाई KC अगर ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, अगर केसी कम होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन. इफ केसी इज इक्वल टू क्यू देन क्या होता है, इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इसमें बोला है क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, तो अगर केसी कम है तो रिएक्शन तो क्या होगा, रिएक्शन तो बैकवर्ड होना चाहिए, राइट? तो अब हम लोग को बताना है इसके हिसाब से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों में क्या क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आपको चेक करना है बेटा. ठीक है, तो फटाफट देखो एक बार कि क्या क्या बोल रहा है हम लोगों को, क्या क्या नहीं. तो अगर ध्यान से देखो, सो ऑप्शन जो सी है कि असर्शन तो इसमें भी ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स बोल रहा है. क्यों? क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो केसी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए क्यूसी से, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, राइट? तो ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट हुआ. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर है, समझ आया सबको? डन. चलिए, now, next question. For the reversible reaction that is A plus B gives us C plus D, delta G is given minus 350 kilojoule. Which one of the following statements is true at the standard temperature and pressure condition? The reaction is thermodynamically non-feasible. देखो non-feasible तो नहीं है, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है, रिएक्शन इज फिजिबल. ठीक है, कि रिएक्शन यहाँ पे होगा अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव दे रखी है तो. ठीक है, नाउ अब इस चीज को ध्यान से देखो तो एक और चीज पता है हम लोग को, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन, that is delta G is equal to nothing but minus RT into ln K. डेल्टा G किसके इक्वल होता है, माइनस RT ln K. नाउ स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है तो डेल्टा G नॉट अगर यहाँ जीरो से कम है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, इफ द डेल्टा G नॉट इज लेस देन जीरो, एज इन द केस हेयर K एज ग्रेटर देन वन, K की वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे, फिर वन से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, so entropy change is negative, equilibrium constant is greater than 1. So yes, option C absolutely correct है, because ये relation है delta G is equal to minus RT ln K. अगर delta G नेगेटिव हो गया तो K की वैल्यू एक से ज्यादा होना चाहिए. So option C बिल्कुल सही है. चलो 63 क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is an example of disproportion reaction? So what is disproportion reaction beta? So the reaction in which
same element undergo oxidation as well as reduction. So this is called disproportion reaction, right? So same species undergo oxidation as well as reduction. So carefully observe option A. In this, P4 having zero oxidation state, right? And here the oxidation state of P is increased from zero to what? That is pH3, right? So in pH3, the oxidation state H का कितना हो गया 1, that is -3. So this is 0 to -3. So here reduction will take place. Now here you'll calculate the oxidation state. Like hydrogen, we have a 2. Phosphorus, let us assume X, and this is -8 is equal to -1. -2 for the 8, right? Oxygen having -2 oxidation state. So X comes out to be -1 +8 and -2. So 8 में से 3 गया, that is +5. So here the oxidation state is +5. So in the same case, oxidation state of phosphorus increase from 0 to 5. So we can say that oxidation takes place and decrease from 0 to -3. So reduction is also takes place. So we can say that option A is in a disproportion in nature where same species undergo oxidation as well as reduction. Now, move to question number 64. In which of the following compound does chlorine exhibit +3 oxidation state, right? So we have the four option, and out of this four option, we have to identify in which case the chlorine exhibit +3 oxidation state, right? So let us calculate. In the first case, we have X, fluorine having -3 oxidation state. So it comes out to be +3. So here the oxidation state of chlorine is +3. ठीक है. So oxidation state of chlorine is +3. Now in case of Cl2O, right? Cl2O and ClO2 negative. So first let us calculate for ClO2 negative. So ClO2 negative, right? So here let us XO2 having -4 oxidation state, and this is equal to -1. So X comes out to be -1 plus 4. Again, that comes out to be 3. So in both A and C, the oxidation state comes out to be 3. So we can say that option D is absolutely correct. Chalo, move to question number 65. A is an alkene which reacts in the following manner, right? When A is treated with the KMnO4, right? What produce? They produce one ketone group and one carboxy group, right? So now you have to identify an alkene. Which alkene is this basically, right? So this is a cyclopentadiene. Does not, sorry. First of all, you have to identify the alkene ना. इसमें आपको क्या निकालना है? Alkene को find out करना है कि कौन सा alkene होगा, because यहाँ से ये break हुआ है और break होने के बाद क्या मिला है? Break होने के बाद एक मिला है आपको carboxylic acid and another is this one group, right? So you have to identify which alkene is this. So basically this is yeah, केयरफुली ऑब्जर्व ऑप्शन बी. ऑप्शन बी को जरा ध्यान से देखो, ठीक है? तो ऑप्शन बी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ होगा? तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है बेटा आपका यहाँ से, ठीक है? तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, दिस वन, ठीक है? तो ये देखो, दिस यहाँ पे क्या मिल गया? ओ मिल गया. फिर ये इसके साथ गया एंड अगेन यहाँ पे क्या मिल गया? COO H मिल गया है. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी ऑप्शन बी है वही करेक्ट एल्कीन इसके लिए होगा. चलो, 66 क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, कि कौन सा यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? तो बेटा सिंपल सा रूल है, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको फॉलो नहीं करेंगे, जो फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक, जो फॉलो नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक नहीं कहलाएंगे, राइट? सो साइक्लोपेंटाडाइइन की अगर आप बात करो, साइक्लोपेंटाडाइइन डज नॉट फॉलो हकल्स रूल, ठीक है? ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता है. देयरफॉर इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड. इट हैज ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई. 2 पाई यहाँ, 2 पाई यहाँ, 4 पाई. तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 67 ध्यान से देखो. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है और जब आपका इसका रिएक्शन करोगे तो सिंपली क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बेटा? तो ये एक पीआर आपका यहाँ लग जाएगा, एक पीआर आपका यहाँ लग जाएगा, ठीक है? सो ये बन गया, क्या बन गया बेटा? दैट इज 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन. तो 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन. तो ऑप्शन सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या है. जस्ट अ सेकेंड. या
Question number 68. Anti-Markovnikov's addition of HBr is not observed in. Anti-Markovnikov's addition किसमें ऑब्जर्व नहीं होता है? So Markovniks और anti-Markovniks दोनों है ना, both are not observed in the symmetrical alkenes because anti-Markovniks हो गया या Markovniks हो गया, they are observed only in the case of asymmetrical alkene. तो जो symmetrical alkene होगा वहां ऑब्जर्व ये नहीं होगा. तो ब्यूट 2 इन जो है, ठीक है, आउट ऑफ दिस ब्यूट 2 इन जो है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है. सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब समझते हो बेटा क्या होता है? सी एंड सी, राइट. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के इधर भी दो कार्बन, इधर भी डबल बॉन्ड के दो कार्बन, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन. तो सिमेट्रिकल एल्कीन में ये केस नहीं होगा, तो एंटी मार्कोनिक्स रूल आप कभी भी सिमेट्रिकल एल्कीन में ऑब्जर्व नहीं होता है. चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ हाइड्रोकार्बन कंटेन 82.8% कार्बन एंड रेस्ट हाइड्रोजन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? So it's a very simple question, beta. So we have a carbon, hydrogen. Their percentage is given 82.8% carbon. So remaining that is 17.2% is hydrogen. Molecular mass of carbon is 12 and hydrogen is 1. So mass upon molar mass, that is 82.8 divided by 12. Right, 17.2 divided by 1. So on solving values comes out to be 6.9 and their value is 17.1. So which one is the smaller? Obviously 6.9. So divide the value by the smallest one. So 6.9 divided by 6.9, 17.1 divided by 17.1. ये तरीका होता है बेटा empirical formula निकालने का. So this comes out to be 1 and sorry इसको 6.9 से करना था, ठीक है. So sorry, दोबारा लिखता हूँ, ठीक है. 6 जो भी छोटी वैल्यूज होती है ना उसे डिवाइड कर देते हैं सबको. तो इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 2.5. नाउ इसको एक होल नंबर बनाओ. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट कम्स आउट टू बी 2, इट कम्स आउट टू बी 5. सो द करेक्ट आंसर इज C2H5. C2H5. सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है. C2H5 इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो मूव टू 72 क्वेश्चन. Enthalpy of vaporization of benzene is 35.3 kilojoule per mole at its boiling point 80 degrees Celsius. What is the entropy change? So this is in this we need to use the formula for the entropy change for the phase transition. ठीक है, तो phase transition के लिए जो entropy change होता है उसका formula हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं. So it's a very simple formula, right? We can easily know the formula, that is delta S is equal to delta H upon boiling point temperature. So here delta H is nothing but enthalpy vaporization of benzene is 35.3 kilojoule. Right. Now entropy change in the transition of pure vapor to liquid. तो वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन है, दैट इज वेपर टू लिक्विड में चेंज कर रहे हो. तो कितना आ गया ये बेटा? दैट कम्स आउट टू बी, ध्यान से देखना. तो ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दो, क्योंकि यहाँ पे बोला वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन है एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वेपर टू लिक्विड निकालना है, वेपर से लिक्विड, और वो लिक्विड से वेपर हो रहा था. ठीक है, तो जस्ट वैल्यू को चेंज कर दो. तो इट्स कम्स आउट टू बी -35.3 इंटू 10 की पावर 3. 4 किलो जूल वी आर यूजिंग 10 की पावर 3. और इधर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी, दैट इज 80 प्लस 273. So on solving, values comes out to be -100 joule per Kelvin mole inverse, right? So which of the following is correct? That is option B. Chalo, move to question number 73. That is the amount of heat evolved. That is the heat of neutralization is given 57.3 kilojoule. When the 500 centimeter cube of 0.1 molar HCl is mixed with the 200 centimeter cube of 0.2 molar NaOH. So this is question from the neutralization acid base reaction. ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाफट रिएक्शन को पहले. सो दिस इज द रिएक्शन हियर. HCl react with NaOH, right? When the HCl react with NaOH, what they produce? NaCl, that is salt plus water. So NaCl plus water, right? Now, initial moles are given. So at T is equal to 0. तो at the initial moles, HCl का वैल्यू क्या गया है? तो HCl when the 500 centimeter cube of 0.1 molar HCl. So we can easily calculate the mole now, because what is molarity? Molarity is nothing but number of mole per unit volume. So N is equal to M into V, right? M into V. So here M is nothing but 0.1 and volume is 500 centimeters. So convert into the meter cube or liter. So divided by 1000, right? Similarly for NaOH, let's calculate the value first. So it comes out to be 0.05. Now similarly for NaOH, so we have a 200, right, into 0.2.
divided by 1000. So it comes out to be 0.04 mole. So this is the initial mole, right? This is the initial mole, 0.05 and 0.04 mole. So now at t is equal to 0, already we see at t is equal to 0, number of mole is 0.05 and the number of mole of NaOH is 0.04, and this is 0 and 0 because initially product is 0. Now after some time at t is equal to sometime t, let us, so 0.05 minus 0.04, and this comes out to be कितना आया ये, that is और ये क्योंकि बोला था ना, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन द 500 सेंटीमीटर NaCl इज मिक्स विद द 200 मिलीलीटर 0.2 मोलर NaOH, यानी 1 मोल ऑफ HCl जो है, ठीक है ध्यान से देखो, 1 मोलर ऑफ HCl रिएक्ट विथ 1 मोलर ऑफ NaOH, राइट? तो 0.1 मोलर, तो यहाँ से वैल्यूज निकाला, तो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज 0, और यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड कितना बन गया है, 0.04 प्लस 0.04, क्योंकि लिमिटिंग यही है ना, 0.04 तक जब तक रहेगा, जब तक ये रिएक्शन होगा, उसके बाद रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है? सो ये कितना वैल्यूज आ गया बेटा, दैट्स कम्स आउट टू बी 0.01 मोल, ठीक है? नाउ इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, 1 मोल NaOH को कितना, 1 मोल ऑफ NaOH इसको कितना HCl चाहिए, ऑब्वियसली 1 मोल ही चाहिए, तो 1 मोल ऑफ NaOH को 1 मोल HCl चाहिए, और उसमें कितनी हीट रिलीज हो रही है, 57.3, so टू न्यूट्रलाइज 0.04 मोल ऑफ NaOH, 0.04 मोल ऑफ HCl चाहिए होगा, ठीक है? तो कितना हीट हो जाएगा, 1 मोल चाहिए, तो 0.04 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, ऑब्वियसली 0.04 मोल ही तो चाहिए होगा, और 0.04 मोल के लिए कितनी हीट हो जाएगी, अगर 1 मोल के लिए 57.3 है, तो इसके लिए हो जाएगी 0.04 इंटू 57.3, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.292, 2.292, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है? तो कैसे निकाला, ये चीज समझ आ गई? क्या क्या दे रखा था, पहले इनिशियल मोल निकाला, फिर हमने फाइनल मोल निकाला, एंड देन बताया कितना मोल बन रहा है, ठीक है? चलो, now move to question number 74. For the reaction CO plus H2O gives the CO2 plus 2 at a given temperature, the equilibrium amount of CO2 can be increased by, इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? तो पहली चीज, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो कैटलिस्ट का तो कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं है। नाउ डिक्रीजिंग द वॉल्यूम और प्रेशर हैज नो इफेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो कितने हैं, CO2 का 1 मोल, H2 का 1 मोल, यानी 2 मोल, और इधर भी 2 मोल, तो प्रेशर और उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम है। तो डिक्रीजिंग द वॉल्यूम और यहाँ पे हो गया कैटलिस्ट, ये तो दोनों को आप टाइप करो। नाउ अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब नेक्स्ट में क्या है कि डिक्रीज फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CO2, ठीक है? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट CO2। तो यहाँ पे बोला है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO, तो ये भी गलत है। तो क्या आंसर हो गया भाई 74 का आपके हिसाब से? ये सारे ऑप्शंस तो गलत हो गए, तो कौन सा ऑप्शन बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है जो करेक्ट है, यस बताओ, दैट इज डी, भाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO। क्यों ऐसा क्यों होता है बताओ, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो चलो मैं बताता हूँ कैसे आप बताओगे इंक्रीजिंग द अमाउंट से। देखो, अगर आप CO का अमाउंट इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर वो इसके अमाउंट को कम करना चाहेगा, और कम कैसे कर सकता है, प्रोडक्ट बना बना के, है ना? तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, यानी अगर आप CO का अमाउंट इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा अपोज करता है, वो उधर करेगा जिधर इसके कंसंट्रेशन को कम कर सके मतलब फॉरवर्ड कर देगा। तो बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO ये हमारा कर सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो 75 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि इन इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन HCH3 दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज, बोल रहा है कि कौन से कार्बन पे ये मोस्ट चांसेस है इसके वहां पे जाने के, ठीक है? तो हमको सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना? A tertiary carbocation is a more stable than the secondary and the primary carbocation. So migration H atom from the C4 result in the stable carbocation. अगर मैं C4 से निकालूं तो वहां पे tertiary carbocation बन सकता है, यानी presence of lone pair of electron on O atom of OH group stabilize the carbocation more and therefore the H atom of C4 does not migrate. तो कौन होगा?
C4 अगर करते तो माइग्रेट हो जाता, बट OH यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो किसको करना चाहिए बेटा, यहाँ से बताओ। तो और कौन सा ऑप्शन बेटा, टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये हम लोग को पता है, लेकिन साथ साथ हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का, दैट इज H को निकालो कार्बन नंबर 2 से, ठीक है, यहाँ से निकालो क्योंकि यहाँ पे OH अटैच्ड है। तो यहाँ से आप इसको रिमूव करोगे, ना कि 4 से। 4 से हटा दे तो टर्सरी बनता, लेकिन साथ ही साथ वहां पे ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, OH ग्रुप भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए कि जो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर था इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर है ना, ठीक है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसके चलते ऑन ओ एटम ऑफ OH ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन मोर, एंड देयरफॉर H एट कार्बन नंबर 2 माइग्रेट होगा और 4 वाला माइग्रेट नहीं होगा। तो हाइड्रोजन एट C2, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट शो प्लस एम इफेक्ट, एम इफेक्ट कौन शो करता है, तो सिंस द इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द NH2 ग्रुप इट शो पॉजिटिव मेटामेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो कौन सा शो करेगा, NH2, सिंपल सा एक ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, डोनर ग्रुप्स होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। चलिए 78 क्वेश्चन। एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 80 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, इज आइसोटोनिक, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर 5% सॉल्यूशन के साथ सेम है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले गिवन है पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, है ना, और पाई का फॉर्मूला क्या होता है, CRT। तो CRT अब इसमें देखो C1 C2 बाकी सब सेम है, तो कैंसिल। C1 हो जाएगा N1/V, ये हो जाएगा N2/V। तो V कैंसिल, N1 क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये पहले वाले के लिए बात हो रही है। दूसरा हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये सेकंड के लिए है, ये फर्स्ट के लिए है। तो फर्स्ट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 10 ग्राम और यूरिया है मतलब 60। सेकंड के लिए 5 ग्राम मतलब 5 है, 5% सोल्यूशन, और मोलर मास इसका हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो निकालो फटाफट, कैसे निकलेगा, ठीक है। तो फटाफट निकाल देते हैं, क्वेश्चन में आंसर कैसे आएगा। तो इट्स कम्स आउट टू बी, दैट इज, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना, ये 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब था, ठीक है, कितना था ये, 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब था। तो ये चीज भी हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। तो दैट इज 1/6 हो गया, है ना, यहीं से कैंसिल कर देते हैं। तो m कम्स आउट टू बी 6 × 5, राइट। सो m इज इक्वल टू 6 × 5 कितना आया, 30, ठीक है, 30। बट ध्यान दे रहो, ये 5% था, परसेंट का मतलब क्या था, 5 ग्राम, और वो क्या था, 5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे दिमाग लगा के चलना है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 50, ठीक है बेटा, ये 5% सॉल्यूशन है ना हमारा यहाँ पे। तो आंसर, ठीक है, देखो बेटा ये 5% जो है ना, ये थोड़ा सा चेंज करना है। ये क्या हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा, वैसे तो 5 ग्राम होता है, पर हमने यहाँ पे ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के टर्म्स में चेंज किया है। तो ये हो जाएगा 50, तो आंसर कम्स आउट टू बी 300, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा जो मिस्टेक लग रहा है मेरे को, वो क्या है कि यार इस क्वेश्चन में ना ऐसे क्या बोला है कि 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो इस चीज का थोड़ा सा याद रखना था। और मोलर कंसेंट्रेशन कितना देगा, 5%। तो बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूजन में क्या ले लेते हैं, 5% का मतलब होता है 5 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम, नहीं, यहाँ पे आप ये भी देखो कि किसके रिस्पेक्ट में दे रहा है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, तो 300 इज द करेक्ट आंसर। द मिक्सचर दैट फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट तो बनाते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, तो वाटर और नाइट्रिक एसिड जो होंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट ड्रॉप्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, a solution is prepared by urea in water in which the mole fraction of urea is this, find out the molality of the solution। तो आपको मोलालिटी यहाँ पे निकालना है, तो किस तरीके से आप मोलालिटी निकालोगे, तो देखो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन होता है कि मोलालिटी इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन इनटू 1000, ठीक है, दैट इज XB divided by XA into MA. So this is the relationship between molality and mole fraction. Now here the mole fraction of urea is given, that is 0.3, 1000 we know already. Mole fraction of urea is 0.3, then what is the mole fraction of water, that is 0.7.
and molecular mass of water is nothing but 18. So on solving, you'll get the value that is 23.80. 23.80 m. So option C is absolutely correct. Now, the next question is identify the temperature independent concentration term. Out of these four, which of the following is the temperature independent? So molality is the independent of temperature. Mole fraction, mass percentage, these all are the temperature independent quantity. So option E is absolutely correct. Chaliye, move to the next question, 84. From the following E naught values of the half cells, what combination of the two half cell would result in a cell with the largest potential? आपसे पूछ रहा है इसमें से लार्जेस्ट पोटेंशियल कौन से सेल का निकल के आएगा? ठीक है, तो लार्जेस्ट पोटेंशियल आपको इसमें से सेल का फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ध्यान से देखो, सभी सेल्स को देखो, जो जो वैल्यूज हम लोगों को दे रखे है ना, उन सभी वैल्यूज को केयरफुली देखो बेटा। आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पहला क्या है, ई नॉट वैल्यू 1.24 है ना, और ये वाला देखो -0.15 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को अगर आप देखोगे तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी? ये ए से ए प्लस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, और ये D-2 से इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक है, तो हमें ऐसा क्या करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज को लेना होता है। ठीक है, तो अगर आप सबसे ज्यादा देखोगे तो कौन से दो सेल से वैल्यूज मैक्सिमम आएगी? तो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू हाफ सेल वुड रिजल्ट इन द सेल विद द लार्जेस्ट पोटेंशियल? तो लार्जेस्ट पोटेंशियल किसका आएगा बेटा यहाँ पे? तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो 1.2 माइनस माइनस 0.59, तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 0.59, तो कितना आ गया? 62, 1.1.79। तो ये दो वैल्यू मैक्सिमम आ रही है बेटा। ठीक है, किसके लिए? इसके लिए वैल्यूज हमारी जो है वो मैक्सिमम आ रही है। तो वी कैन से दैट फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड इन फर्स्ट, एक सेकंड, किसको करेंगे? 84th ना, तो दैट इज फर्स्ट, एंड इसको तो 1.79 आया ना फर्स्ट और फोर्थ से, बाकी भी चेक कर लेते, रुको, ये तो इतना आया। फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं, तो 1.2 माइनस माइनस प्लस 2.1, तो 2 and 1, 3.21। यस, ये वैल्यू मैक्सिमम बेटा, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड को। तो फर्स्ट एंड सेकंड को मिला, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 डॉट H2SO4 एंड HCl सॉल्यूशन आर X1 H2 X रिस्पेक्टिवली, BaSO4 का आप लोग को निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो इन सबका दे रखा है BaCl2 H2SO4 NaCl, और BaSO4 का हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखते हो बेटा? अगर आप ध्यान से देखो तो BaCl2 को आप कैसे लिखते हैं? अगर आपको लिखना होता तो सबसे पहले मुझे किसका निकालना है? BaSO4 का। तो BaSO4 का कैसे निकल जाएगा बताओ? तो BaSO4 का अगर मैं बात करूं, तो BaSO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस ऑफ Ba प्लस लैम्डा नेगेटिव ऑफ SO4 ट्वाइस नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से इन सबका तोड़ो, तो मैं कैसे लिख सकता BaCl2 का? BaCl2 का मैं कैसे लिख सकता था कि लैम्डा ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Ba प्लस 2Cl नेगेटिव, है ना, लैम्डा। उसी तरीके से H2SO4 का कैसे लिख सकता था कि 2H2 प्लस SO4 ट्वाइस नेगेटिव, है ना, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू दे रखी है X1 X2 एंड X3 रिस्पेक्टिवली, तो Ba के लिए तो X1 हो गया, है ना, और SO4 तो X1 X2 माइनस 2X3। ठीक है, X1 प्लस X2 माइनस 2X3, बिकॉज 2Cl से 2Cl कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। चलिए, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 86। The specific conductance of the saturated solution of silver bromide is के सेंटीमीटर साइबर इनवर्स, मतलब कंडक्टिविटी दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी है ये। द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस एंड Br आयंस X एंड Y रिस्पेक्टिवली, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सिल्वर ब्रोमाइड इन ग्राम लीटर। तो ये बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आप लोग को याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मुला क्या होता था जो हम डेराइव करते थे, दैट इज K इंटू 1000 इंटू कितना वैल्यू दे रखा है इसका, मॉलिक्यूलर मास 188 डिवाइडेड बाई X प्लस वाई। तो ये बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो वी कैन से दैट ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें याद करने वाला था, कुछ ज्यादा सॉल्व करने जैसा था नहीं। Now, the resistance of a solution of A is 40 ohm and that of solution B is 70 ohm. Both solution being taken in the same conductivity cell. If the equal volume of solution A and B are mixed, what will be the resistance of the mixture using the same cell? तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि what will be the resistance of the mixture using the same cell? Assume there is no increase in the degree of dissociation A and B. ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, तो कितना होगा?
तो रेजिस्टेंस सॉल्यूशन ए का रेजिस्टेंस आर ए का कितना दे रखा है बेटा, दैट इज 40 ओम, ठीक है। और बी मतलब आर बी का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, दैट इज 70 ओम। नाउ बोथ सॉल्यूशन बीइंग टेकन इन द सेम कंडक्टिविटी सेल, मतलब कंडक्टिविटी सेल में सेम लिया है। इफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी आर मिक्स, दोनों को क्या किया है, इक्वल वॉल्यूम को यहाँ पे मिक्स किया है, ठीक है। ठीक है, तो दोनों का हमें दे रखा है यहाँ पे। अब देखो, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर मैं निकालूं सी एम, मैं लिख के चल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2। सिमिलरली इसको कंडक्टिव के टर्म्स में अगर लिखूं मैं, तो कैसे लिख दूंगा, 1/2, बिकॉज कंडक्टेंस वन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और ये हो जाएगा 1/RM, रिजल्टेंट है ना। तो 1/RM जो है वो कितना आ गया बेटा, दैट इज 1/2। R1 R2 की वैल्यू बता दो यहाँ से फटाफट, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो दिस इज R1 R2, दिस इज R1 प्लस R2। नाउ वैल्यू इज कितना आ जाएगा, RM। अब RM निकाल दो, तो RM कम्स आउट टू बी R1 R2, उल्टा कर दिया बस, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई 2। बस वैल्यूज पुट करनी थी, कितना है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो R1 R2 की। तो एक है 40, एक है 70, एंड 40 प्लस 70 इंटू 2, 4 7 28। तो 28 2800, 70 30 100, 110 इंटू 2। तो 2 से 55 बार में कटा, इसको पूरे को सॉल्व करो, 50.9 ओम, ठीक है। तो 50.5 ओम हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कंडक्टेंस से निकाला हम लोगों ने, कंडक्टेंस का फॉर्मूला रखा, ऐड किया दोनों को, और फिर वहां से हमने निकाल दिया। तो 50.9 ओम, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल हम लोगों का करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्या बोला है 88 क्वेश्चन, तो 88 क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस 2b गिव्स अस 3c, गेट इंक्रीज बाई 72 टाइम्स। कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 72 टाइम्स। when the concentration of A is triple and that of B is double, what is the order of reaction with respect to A and B? आपको निकालना है order of reaction with respect to A and B, दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपको निकालना है। तो चलो भाई, फॉर्मूला लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रेट लॉ को। तो R इज इक्वल टू के, ए का पावर एक्स होता है और बी का पावर वाई होता है। यही एक्स और वाई जो होते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं ना। यहाँ पे पहले बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 72 टाइम्स, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय ट्रिपल, मतलब 3 टाइम्स हो गया, एंड बी इज डबल, यानी ये हो गया 2b, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो 72R डिवाइडेड बाई आर, और इस पूरे को डिवाइड करोगे के कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 3a डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स, 2b डिवाइडेड बाई बी की पावर वाई। ए गेट कैंसिल, बी गेट कैंसिल, आर गेट कैंसिल। तो ये आ गया 72 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स एंड 2 की पावर वाई। अब एक्स और वाई निकालना है, सो द इक्वालिटी जस्टिफाइड। इक्वालिटी जस्टिफाइड कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू को 2 रख दो, तो 3 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो 3 तो 9, और ये कितना हो जाता, 8, जैसे 9 8 72 है ना। तो x2 और y3 होगा, तो ये इक्वालिटी वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x2, तो x कितना आ जाएगा 2, और y3, तो 2,3 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन जो बी है वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Listed in the table are the forward and the reverse rate constant for this reaction, that is 2NO gives us N2 plus O2. Temperature Kf and Kb are also given. आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से बताना है कि कौन से यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो आप सबसे पहले मैं के इक्विलिब्रियम निकालता हूँ। के इक्विलिब्रियम एट, पहला कितना दे रखा है, 1400 केल्विन। तो 1400 केल्विन में वैल्यूज कितनी है, 0.29 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10 की पावर -6। तो इससे वैल्यू कितनी आ गई, 2.63 इंटू 10 की पावर 5। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन अपन में बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ अपन के बी, तो निकाल दिया। सिमिलर वे में एक बार मैंने निकाला 1500 केल्विन पे, तो इस पे जब निकाला तो वैल्यू आई 9.28 इंटू 10 की पावर 4, सेम डिवाइड करके निकाला है। नाउ वैल्यू ऑफ के ई रिड्यूस विद द राइजिंग टेम्परेचर, सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो क्या हुआ है, जो के की वैल्यू है वो घट गई है,
क्या हो गई है, घट गई। पहले 10 की पावर 5 थी, अब 10 की पावर 4 हो गई, यानी घट गई। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू घट रही है, मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हुआ ये, एक्सोथर्मिक। तो हमने के एफ अपॉन के बी निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा, तो उसकी वैल्यू घट गई टेम्परेचर के बढ़ाने पे। तो अगर घटी है तो ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, नहीं नहीं, ये वाला रिएक्शन नहीं, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, नो, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज 1400 केल्विन इज 2.63। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक aqueous solution of nickel nitrate is electrolyzed between the platinum electrode using a current of 3.86। यानी करंट कितना दे रखा है आपको, 3.86 एम्पियर फॉर 100 मिनट, यानी टाइम कितना दे रखा है, 100 मिनट। द मास ऑफ निकल डिपोजिटेड एट कैथोड आपको निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू जेड आई टी, फैराडे सेकेंड लॉ। नाउ जेड इज व्हाट, जेड इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन एफ, और आई और टी तो आई टी है। नाउ मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, यहाँ पे क्या है, निकल की बात हो रही है ना, तो निकल का एटॉमिक मास दे रखा है 58.7। एन कितना होता है निकल पे, 2। फैराडे कांस्टेंट 96,500। आई कितना है, 3.86। टाइम कितना है बेटा, 100 मिनट। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, मिनट को सेकंड में भी ले लो भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ऑन सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू। कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करने पे, दैट इज 7 ग्राम। तो 7 ग्राम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेल है, द सेल Zn से Zn2 प्लस, जिसका कंसंट्रेशन गिवन है, कॉपर का भी गिवन है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ Zn टू कॉपर प्लस, ये निकालना है। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ई सेल का फॉर्मूला लगाते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एंड दिस इज लॉग कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, Zn+2 डिवाइडेड बाई कॉपर+2। ये क्वांटिटी हम लोगों को पूरा निकालना है। ठीक है, तो ई नॉट सेल कितना है, 1.10, 0.0591 कितना है, और एन कितना है बेटा इस क्वेश्चन में, 2। लॉग ये पूरा निकालना है, इसी को तो एक्स बोला है हम लोगों ने, है ना, पूरा एक्स मांगी है मैंने, ये एक्स निकालना है हम लोगों को। तो इसको सॉल्व कर लो, एकदम सिंपल सा कहानी है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू। कितना आ गया भाई, इसको सॉल्व करने पे, ई सेल गिवन है क्या हम लोगों को, द सेल ई नॉट सेल गिवन है, वॉज अलाउड टू कंप्लीटली डिस्चार्ज, है ना। तो ई सेल जीरो हो जाएगा बिकॉज द सेल इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। तो जब ये जीरो हो गई तो ये कितना हो गया, तो ये 0.0591/2 इधर आ गया। लॉग इसको मैं एक्स मान रहा हूँ पूरे को, तो इधर आ गया, और ये 1.10 इधर रह गया। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.10 डिवाइडेड बाई 0.0591 into 2। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, राइट। तो कितना आ गया, दैट इज एंटी लॉग। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस, दैट इज एंटी लॉग ऑफ 1.10 into 2 डिवाइडेड बाई 0.0591। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 10 की पावर 37.3। ठीक है, 37.3 आ रहा था पूरी को सॉल्व करने पे, तो 10 की पावर 37.3। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है 94th क्वेश्चन। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कौन सा होगा। तो फॉर द स्पॉन्टेनियस ई नॉट सेल मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव कौन से केस में आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा हमारे कौन से केस में बेटा, जब ई नॉट अगर मैं बात करूं तो ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, है ना। ई कैथोड और ई एनोड को माइनस करते हैं, तो कैथोड को क्या ले लूं, दैट इज -0.34 वोल्ट एंड -0.76 वोल्ट। तो ये कितना आ गया, ठीक है, दो बार माइनस लग जाएगा ना यहाँ, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो इस कम्स आउट टू बी 0.42 वोल्ट। तो कॉपर एक्ट एज अ कैथोड, कॉपर किसकी तरह काम करे, कॉपर एक्ट एज अ कैथोड एंड जिंक एक्ट एज अ एनोड। तो देखो
जिंक एक्ट एज एनोड की तरह काम करे, तो जिंक देखो यहाँ पे एनोड की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, और कॉपर यहाँ पे कैथोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब ई सेल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड यानी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कॉपर की, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.34 वोल्ट, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो वैल्यूज कम्स आउट टू बी 0.4 वोल्ट। ठीक है, तो ये याद रखना। A reaction proceed by the first order, 75% of the reaction was completed in 32 minutes. What is the time required for the 50% completion? ठीक है, 50% के लिए निकालना है। ठीक है, तो T75 के लिए पहले निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के, है ना। और दिस इज लॉग आर नॉट, तो 100 होता है ऐसे क्वेश्चन में, 75 मतलब 25% रह गया। तो ये हो गया। अब इसके लिए टाइम 32 मिनट्स दे रखा है, तो के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा 2.303, टी को नीचे ले आया, 32 यहाँ रखा मैंने, एंड दिस इज लॉग 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी कर लो, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 32, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020। तो ये पूरा हमारा के आ गया, वन इक्वेशन। अब क्या करो, आपको T50 के लिए निकालना है, तो T50 कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर का, 0.693 डिवाइडेड बाई के, हो गया सिंपल। तो 0.693 के की पूरी वैल्यू रख दो, दैट इज 2.303 इंटू 0.6020 डिवाइडेड बाई 32। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ऑन सॉल्विंग, यू विल गेट द वैल्यू, दैट इज 16 मिनट। तो 16 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 98। क्या बोला है, द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, यानी के की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻²2 mole per liter second. If the concentration of the reactant after 25 seconds is this, what is the initial concentration? तो जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या था, तो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था, दैट इज K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, राइट। तो K की वैल्यू है 2 × 10⁻², आर नॉट, इफ द कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट आफ्टर 20, आर नॉट निकालना है, आर कितना है 0.5, और टी कितना है बेटा 25 सेकेंड। सिंपली आर नॉट यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो जब आर नॉट यहाँ से कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, एकदम इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन कैलकुलेटिंग आर नॉट कम्स आउट टू बी 1 मोल। ठीक है, 1 मोलर, तो 1 मोलर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है फॉर द रिएक्शन ए एक्स बी व्हेन ए कंसंट्रेशन इज 2.2 mm molar, the rate was found to be 2.4 molar. On reducing the concentration to half, the rate changes to 0.6 molar. The order of the reaction. Now, when the concentration of the reactant is reduced to half of its initial value, the rate is reduced by 4 times, है ना। रेट कितना रिड्यूस हो गया, 4 टाइम्स। देखो ना, पहले 2.4 था, अब 0.6 हो गया, यानी रेट कितना रिड्यूस हो गया है, 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया है। तो इससे साफ साफ पता लग रहा है कि जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के पावर 2 के, है ना। तो इससे पता लग गया कि ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग गया पहले इसका इतना था, जैसे रिड्यूस किया तो इतना हो गया, यानी 4 टाइम्स का चेंज है, मतलब 2 का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, that is the vapor pressure of the curve of the same solute in the same solvent are shown. The curves are parallel to each other and do not intersect. The concentration of solution are in the order of, तो आपको पूछा concentration of solution बताइए। Now elevation in boiling point जो होता है ना, वो directly proportional होता है concentration of the solution, and thus the order of the concentration of solution क्या हो जाना चाहिए, 1 से ज्यादा 2 और 2 से ज्यादा 3, क्योंकि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा आ रहा है इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन भी उतना ही ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू 321, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सारा आप लोगों को समझ आया होगा जहां जहां आप लोगों को प्रॉब्लम फेस की थी। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल टेक केयर, और आराम से इसको एक बार जस्ट गो थ्रू करो, है ना।